Hello everyone. Today I am here in front of you all with a new poem, and the poem name is The Dentist and the Crocodile. So this is the poem is all about a crocodile who went to a dentist for the tooth checkup, right? And he is having a toothache, right? Here again I am adding he for the crocodile, as you know that it is an animal. For animal we always use it, but the poem, in the poem the poet want to humanize the crocodile, and this is a great humorous poem, right? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो humorous का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी बात या कुछ ऐसा सिचुएशन जिसको देख करके आपको हंसी आ जाए। इस पर मैंने आपको चार्ली चैपलिन का भी एग्जाम्पल दिया था, और नाउ डेज आप कपिल शर्मा को भी जानते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ बिग ह्यूमरस पर्सन। मतलब कहीं ऐसी क्लिक उनके माइंड में आती हैं और कहाँ वो किसी भी सिचुएशन को कॉमेडी में क्रिएट कर देते हैं, यह उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करता है, वो कितने अच्छे से अपने IQ लेवल को यूज़ करते हुए अपने ह्यूमर का यूज़ करते, राइट? तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमर, एंड with great humor and delight the text portrays the dentist fear of the crocodile, right, while humanizing dentist in the eyes of children. क्या कहने की बात है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल यू इमेजिन, राइट, कि अगर आपकी क्लास में या आप जहाँ पर हैं वहाँ पे कोई क्रोकोडाइल आ जाए, at that time how you feel, right? So everyone will be frightened there. जो लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर क्रोकोडाइल आ जाएगा या वाइल्ड एनिमल कोई भी आ जाएगा जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है? तो सेम सिचुएशन इस पोम में जो है बताई गई है, दैट्स अबाउट कि एक डेंटिस्ट है, उसके क्लिनिक में क्या होता है, एक क्रोकोडाइल आता है फॉर टूथ चेकअप. So this is a humorous poem, and it is delighted also because यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को इतना कॉमिक तरीके से या इतना ह्यूमरस रूप में प्रेजेंट किया है जो कि बहुत डिलाइटेड फील करता है. डिलाइटेड जो वर्ड है बच्चों, ये हैप्पी से भी ऊपर का है या ग्लैड से भी ऊपर का है. डिलाइटेड मतलब हैप्पी फ्रॉम योर इनर पार्ट ऑफ द हार्ट. आप अंदर से जब बहुत खुश होते हैं ना, तब आप डिलाइटेड फील करते, राइट? तो जब हम आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कभी ऐसी मूवीज़ देखते हैं या हम किसी पीसफुल जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमको डिलाइटेड फील होता है, राइट, हम जहाँ पे बहुत अच्छा फील करते हैं. तो डिलाइट का मीनिंग होता है जब हमारा इनर बॉडी पार्ट या हमारी जो सोल है वो बहुत हैप्पी होती है, उस समय हम डिलाइट फील करते हैं, राइट? So this poem is all about the crocodile and the dentist, and सबसे बड़ी बात, the dentist is facing such kind of situation in which he don't want to be and he want to run away from that situation, and here the crocodile is tricking over him, or we can say he is having prank over him, कि वो उनके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है. अब यहाँ पे क्रोकोडाइल को भी एज ए ह्यूमन यूज़ किया गया है, या उनको प्रैंक कर रहे हैं क्रोकोडाइल को, और वी कैन से जो क्रोकोडाइल है वो प्रैंक कर रहे हैं डेंटिस्ट के साथ, ऐसा कह सकते हैं. सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट. ओके, द पोएट ऑफ दिस पोम इज रोअल्ड डाल, एंड ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट. He was a British novelist, short story writer, poet and screenwriter. Okay, now when we talk about his work, there are lots of books and magazines, even a lots of written content he has given for the children, so that children can feel more joyful, more delighted, and as well as there were a dark humor in his books, right? So some of his works are on your screen. The James and Giant Peach, another one is Charlie. Next one is Charlie and the Chocolate Factory, My Uncle Oswald, and there are many more content from him. So if we talk about his content, so all of the content related to him is most joyful, delighted and humorous one, right? Now coming to back to the poem, The Crocodile and the Dentist. First of all, we will hear the poem and then
we will come to the explanation. Unit 3 Awareness about Health. Reading B. The Dentist and the Crocodile. The crocodile, with a cunning smile, sat in the dentist's chair. He said, "Right here and everywhere my teeth require repair." The dentist's face was turning white. He quivered, quacked, and shook. He muttered, "I suppose I'm going to have to take a look." "I want you," Crocodile declared, "to do the back ones first. The molars at the very back are easily the worst." He opened wide his massive jaws. It was a fearsome sight. At least 300 pointed teeth, all sharp and shining white. The dentist kept himself well clear. He stood 2 yards away. He chose the longest probe. He had to search out the decay. "I said to do the back ones first," the crocodile called out. "You are much too far away, dear sir, to see what you are about. To do the back ones properly, you have got to put your head deep down inside my great big mouth," the grinning crocky said. The poor old dentist wrung his hands and weeping in despair, he cried, "No, no, I see them all extremely well from here." Just then in burst a lady, in her hands a golden chain. She cried, "Oh, Croc, you naughty boy, you are playing tricks again? Watch out!" the dentist shrieked and started climbing up the wall. "He's after me, he's after you, he's going to eat us all." "Don't be a twit," the lady said, and flashed a gorgeous smile. "He's harmless, he's my little pet, my lovely crocodile." Okay, after hearing the whole poem, now coming to the explanation line by line, word by word. ठीक है, अब हम इस पूरे explanation को line by line, word by word समझने की कोशिश करेंगे और इस poem में हम जो humor है उसको feel करने की कोशिश करेंगे, right? तो चलिए मेरे साथ और enjoy करिए इस poem को. So first line, the crocodile with a cunning smile sat in the dentist's chair. He said, "Right here and everywhere my teeth require repair." Okay, now this is a situation created by the poet that when the dentist came inside his clinic, he found that there is a crocodile sitting on the chair, right? अब वो देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल है जो कि क्या कर रहा है, पेशेंट वाली जो चेयर होती है उस पर वो बैठा है. एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर. वो वहाँ पे किसके लिए वेट कर रहा है, डॉक्टर के लिए. नाउ हियर हु सेड, क्रोकोडाइल सेड, ही सेड दैट राइट हियर everywhere, right? He opened his jaws and he saw his tooth to doctor and said, look at here, look at my jaws like this way. ऐसे मुंह खोल के वो क्या बताता है कि आप इधर पूरा देखिए, मेरे जॉ को देखिए और उसके बाद देखिए इस पूरे जगह पे मुझे क्या कराना है, रिपेयर कराना है या मुझे टूथ चेकअप कराना है. इस पर कैन यू बिलीव कि डॉक्टर का जो भी फीलिंग होगा उस समय या उसके थॉट्स होंगे वो कैसे होंगे. Of course, yes, whenever a person see a wild animal in front of him, but obvious he will be frightened. वो क्या हो जाएगा, वो डर जाएगा, right? So the dentist face was turning white. He quivered, quacked and shook. Okay, यहाँ पे the face of dentist was turned pale. Pale मतलब एकदम सफ़ेद पड़ जाना. उसका चेहरा क्या होता, डर के मारे सफ़ेद हो गया था. And at that time he was quivered, quacked and shook. See, quivered means trembling from fear, right? or shaking from fear, कांपना जिसे हम कहते हैं. Okay, quacked and shook, इसका meaning similar होता है that he was little bit or he was so shocked by seeing
a crocodile in his clinic, and this was the unpleasant situation what he was facing at that time. Unpleasant situation का मतलब होता है ऐसा situation जो कि पसंद ना हो, right? Unpleasant जो पसंद ना हो. तो at this time he saw that a crocodile is in his clinic. तो यहाँ पे वो क्या हो गए थे? He was scared, he was quacked, he was shocked, मतलब वो ट्रेम्बल कर रहे थे और शॉक्ड थे कि what a patient is sitting here or what kind of patient is sitting here. Okay, moving forward, next line says he muttered, I suppose I am going to have a he muttered, I suppose I am going to have to take a look. I want you, crocodile declared, to do the back once first. Okay, ही मटर्ड का मीनिंग होता है धीरे से फुसफुसाना. और बिकॉज हियर द क्रोकोडाइल वॉज कनिंग मीन्स ही वॉज एट दैट टाइम प्लेइंग प्रैंक और ही वॉज एट दैट टाइम प्लेइंग ट्रिक्स विद डॉक्टर. सो वॉट ही सेड, वो धीरे से क्या कहते हैं, आई सपोज, या मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आप मेरे पूरे मुंह का या पूरे जॉ को क्या करें, चेकअप करें. वाई डोंट यू चेक ऑल माई टूथ, वो ये चाहते हैं. और वो कहते हैं इसमें और मस्ती ऐड करते हुए कहते हैं यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बैक वन फर्स्ट. वो सबसे पीछे वाले से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, राइट. अब आप सोचिए वहाँ डॉक्टर का सीन क्या होगा. when the crocodile is sitting there and he want कि वहाँ पे क्या हो कि उनको किसका चेकअप करना है, एक क्रोकोडाइल का. और स्टार्टिंग कहाँ से करना है, उसके जॉ के सबसे बैक साइड में जो मोलर टीथ होते हैं. आपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि जो टीथ हैं, फ्रंट टीथ को क्या कहते हैं, कॉर्नर्स के टीथ को क्या कहते हैं, बैक साइड के टीथ को क्या कहते हैं. तो जो मोलर टीथ होते हैं वो सबसे बैक साइड में होते हैं, जो अक्सर हम च्यू करने के काम में लाते हैं. आप खाना खाते हैं तब आप एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने कि इन जो पीछे के दांतों को आप किसके लिए च्यू करने के काम में आते हैं. तो यू कैन इमेजिन कि हाउ हॉरिफाइंग दैट सिचुएशन वाज व्हेन ही केम टू नो दैट द डॉक्टर हैज़ टू स्टार्ट हिज ड्यूटी और हिज वर्क फ्रॉम द मोलर टीथ. ओ माई गॉड. तो यहाँ पे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्वियर्ड फील कर रहे होंगे. Maybe he was trembling and shaking by listening this. Maybe क्या, yes of course, at that time he was shaking and trembling by listening all of this, right. वो कहता है, it means crocodile कहता है कि the molar at very back are easily the worst. Again वो कहता है कि जब मैं अपने बैक साइड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ जो मेरे मोलर टीथ हैं उनकी जो हालत है बहुत बुरी है. वर्स्ट का मतलब है बहुत बुरी, है ना, राइट. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं. ही ओपन वाइड हिज मैसिव जॉज, इट वॉज अ फियरसम साइट. नाउ व्हेन हियर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्रोकोडाइल ने कितना बड़ा मुंह खोला है. मैसिव जॉज मतलब जबड़ा होता है, मैसिव मतलब बड़ा, राइट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो यहाँ पे यू कैन इमेजिन अगर किसी ह्यूमन बीइंग के सामने कोई वाइल्ड एनिमल, इमेजिन कोई क्रोकोडाइल इस तरह के अपने मैसिव जॉज को ओपन करके उनके सामने आ जाए तो येस ऑफ कोर्स ये सिचुएशन बहुत फ्राइटनिंग होगी, बहुत ही टेरिबल सिचुएशन होगी, बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी. और वहाँ पर शायद उस व्यक्ति को या उस ह्यूमन या उस पर्सन को लगेगा कि शायद दिस इज़ द लास्ट ब्रेथ आई एम टेकिंग, ये शायद मेरी ज़िंदगी की लास्ट सांस होगी, राइट. किसी को भी ऐसा लगेगा. तो जब उस डेंटिस्ट ने क्या देखा कि उसके सामने दैट क्रोकोडाइल ओपन हिज मैसिव जॉज, उसने क्या किया, अपने बड़े बड़े जबड़ों को क्या किया, उसने खोल दिया. और वो क्या कर रहा था, वो अपने सारे दांतों को उनको दिखा रहा था. एंड दिस साइट वॉज रियली वेरी fearsome. fearsome means डरावनी थी. और फ्राइटनिंग मतलब भी डरना होता है, राइट. At least 300 pointed teeth were there. Can you imagine how
फ्राइटनिंग एंड हाउ हॉरिबल सीन में बी दैट कि क्या होगा, एक इतना डेंजरस वाइल्ड एनिमल अपने मैसिव जॉज को ओपन करके बैठा है एंड ही वॉज इंसिस्टिंग, राइट, हु वॉज इंसिस्टिंग, दैट क्रोकोडाइल वॉज इंसिस्टिंग फर्स्ट check his molar teeth, the back side of the teeth. So this situation is actually very horrible, very unpleasant and very fearful. आइए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम में आगे किस तरीके से ये क्रोकोडाइल उस डेंटिस्ट के साथ ट्रिक्स प्ले करता है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं. Okay, you came to know that all the 300 teeth were so sharp एंड पॉइंटेड, है ना, वो क्या थे, बहुत शार्प और पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब नुकीले थे. सो वाइल्ड एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, यस वो क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं. तो उनके जॉज हैं और टीथ ऑब्वियसली वैसे ही होंगे क्योंकि उनको फ्लैश को क्या करना रहता है, अलग तरीके से खाना आता है, नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना. सो यहाँ पे उनके जॉज और जो टीथ थे वो बहुत ही शार्प एंड शाइनिंग वाइट थे. द डेंटिस्ट kept himself well clear. He stood 2 yards away. He chose the longest probe he had to search out the decay. Okay, यहाँ पे जो डेंटिस्ट को तो अब करना ही था because he was not having any kind of way or he can't save himself from this situation because the crocodile was sitting in front of him. At that time he has to do the work, right? So what he do, he maintain distance. just हम कोविड में मेंटेन करते थे ना 1 हाथ की दूरी, वैसे ही या 2 गज की दूरी मेंटेन करते थे ना, वैसे ही उस डॉक्टर ने क्या किया कि 2 यार्ड्स की डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उसके पास जो प्रोब था, सबसे लॉन्गेस्ट प्रोब. सी डॉक्टर्स के पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट, वो जो छोटे चाकू या अलग अलग तरह के प्रोब्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर द चेकअप, उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोब कहते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो डेंटिस्ट था ही वॉज हैविंग अ प्रोब और जो उसके पास सबसे लंबा प्रोब था, ही सर्च फॉर दैट प्रोब टू फाउंड द डिके इनसाइड द जॉज ऑफ द क्रोकोडाइल. क्या करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, उस क्रोकोडाइल के मुंह में क्या देख सके कि डिके कहाँ है, टूथेक क्यों हो रहा है. टूथेक मीन्स दांत का दर्द होता है, राइट. सो द डेंटिस्ट केप्ट हिमसेल्फ वेल क्लियर एंड 2 yards away from the crocodile and he chose the largest probe he has having in his clinic to search the decay inside the tooth. Okay, आगे बढ़ते हैं. I said to do the back one first. The crocodile called out, "You are much too far away, dear sir, to see what you are about. To do the back one properly, you've got out to put your head." Okay, यहाँ पे again the crocodile is playing tricks with him. क्या कहता है, Sir, you are so far from me, you know, you have to put your head inside my mouth, then only you can find that decay inside my mouth. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो ट्रिक्स प्ले कर रहा है एंड अगेन ही इज सेइंग टू द डॉक्टर कि सर आप बहुत दूर खड़े हैं, सर यू आर स्टैंडिंग सो फार फ्रॉम मी, यू हैव टू कम क्लोजर, आपको पास आना चाहिए, राइट, देन ओनली यू कैन पुट योर हेड. फिर क्या हो सकता है, आप अपने सिर को मेरे इस मैसिव जॉ में अंदर डाल के ठीक से देख सकते हैं कि मेरे कौन से टूथ में प्रॉब्लम है या कौन से टूथ में डिके हैं. नाउ दिस इज़ द सिचुएशन, वेरी हॉरिबल एंड द crocodile is playing tricks, different tricks with doctors. वो जान रहा है कहीं ना कहीं the crocodile is knowing that he is having a great fun with doctor, then also he is playing different tricks with that doctor. Okay, हम आगे बढ़ते हैं और अगले सीन को समझने की कोशिश करते हैं. Deep down inside my great big mouth, the grinning crookie said. ओके, ग्रीनिंग का मतलब होता है वो जो हम किसी को चिढ़ाने के लिए जो मुस्कुराते हैं ना, टीज़ करने के लिए कि अब देखो अब क्या हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जिसमें जिस व्यक्ति को एक्चुअली अगर हम ट्रूथ एंड डेयर वाले गेम को ही एग्जाम्पल ले लें
और हमारा ओपोनेंट डेयर लेता है, उसको इस तरीके का हमने डेयर दे दिया जिसमें वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, तो जो मन में फीलिंग्स या एट दैट टाइम जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, राइट, कि अब देखते हैं कैसा होगा, तो सेम चीज़ यहाँ सेम सिचुएशन है क्रोकोडाइल्स वाज फीलिंग, कि वो क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे डीप डाउन इनसाइड माई माउथ यू हैव टू पुट योर हेड, देन ओनली यू कैन फाइंड द डीके, ओके। और ऐसा बोल के वो एक ग्रेनिंग हंसी देते हैं या चिढ़ाने वाली हंसी के साथ या चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ वो क्या करते हैं, डॉक्टर को देखते हैं। क्रूकी, क्रूकी इज द पेट नेम ऑफ दैट क्रोकोडाइल। फॉर एग्जाम्पल जिनके पेट्स होते हैं, एज यू नो, जैसे डॉग्स होते हैं जिनके, राइट, तो हर डॉग को एक पेट नेम देते हैं, कोई कुछ बोलता है, राइट, कोई शेरू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो यहाँ पे क्रूकी कहा गया है। क्रूकी किसे कहा गया है, क्रोकोडाइल को कहा गया है। द पुअर ओल्ड डेंटिस्ट wrung his hands and weeping in despair he cried, no, no, I see them all extremely well from here. Here the situation of the dentist, the poets wants to explain the situation of the dentist, that at that time the poor dentist, poor मतलब गरीब नहीं, poor मतलब बेचारा, yes, the poor dentist wrung his hands मतलब क्या किया उसने, अपने हाथों को, जैसे फिस्ट बनाना मतलब क्या होता है बच्चों, मुट्ठी बनाना, राइट, हम जब भी मुट्ठी बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, फिस्ट बनाना। रंग हिज हैंड मतलब उसने अपने हाथों को जोर से जकड़ लिया, लाइक दिस वे, और वो क्या किया, अंदर से जोर से, वीपिंग इन डिस्पेयर, ही वांट्स टू क्राई एंड ही वांट्स टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, राइट। तो वो क्या किया, वो उसने कहने लगा कि नो नो नो, योर teeth are all fine, your teeth are extremely fine, you are okay, no need for the checkup। वो जोर से चिल्लाया। Just then in burst a lady, in her hands a golden chain। इस सिचुएशन को कंटिन्यू करते हुए पोएट कहते हैं, when the doctor cried and when he was so frightened, at that time a lady entered his clinic, ठीक है, and he was having a golden chain in her hand, right। तो वहाँ पे वो जो लेडी थी, शायद perhaps क्या हो सकता है, वो कौन थी, she was the lady who is having crocodile as a pet। सबके अपने अपने शौक होते हैं, शायद उस लेडी का ही क्रोकोडाइल था जो पहले आकर के क्लिनिक में बैठ गया था, एंड द लेडी केम लेटर। सो बाकी के पार्ट को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं, और इससे पहले ये देखते हैं कि लेडी क्या कहती है और किस तरीके से डॉक्टर के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करती है और डॉक्टर को इस ट्रिक से बाहर निकालती है, और उसके बाद डॉक्टर कैसे रिलैक्स होता है। लेट्स कम एंड कंटिन्यू द पोएम। Okay, now listening a shout of doctor when a lady entered the clinic. She also cried. She also shouted on his crook. She said, "Oh crook, you naughty boy, you are playing tricks again." वो कहती हैं, अरे क्रूक तुम naughty बच्चे, तुम फिर से क्या करने लगे, उस डॉक्टर के साथ ट्रिक्स करने लगे। Watch out! The dentist shrieked and started climbing up the wall. At that time, that dentist was so frightened. He was so feeling terrible. He was so fearful at that time, right? And he climbed the wall, right? जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब हम डर जाते हैं तो किसी वॉल के पीछे छुप जाएंगे या टेबल के नीचे हम क्या करेंगे, छुप जाएंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बताया जा रहा है कि दैट डॉक्टर क्लाइम द वॉल, वो क्या हुआ, किसी वॉल पे चढ़ गए, राइट। ही इज आफ्टर मी, ही इज आफ्टर यू, ही इज गोइंग टू ईट अस ऑल, don't be a twit, the lady said and flashed a gorgeous smile, right। Now again the doctor was shouting, he was saying he was after me, he means that crocodile was after me, and again he shouted that crocodile is not only after me, he is also after you, वो आपके पीछे भी पड़ा है, he is going to eat all of us, वो हम सभी को क्या कर लेगा, हम सभी को वो खा लेगा। Now, by listening all this, that lady gave a gorgeous smile and she said,
आर यू ए फूल, यहाँ पे जो डोंट बी ए ट्वीट, ट्वीट का मीनिंग होता है फूल, तो वहाँ वो कहना चाहती है कि डोंट बिहेव लाइक अ फूल, राइट, द लेडी सेड एंड फ्लैश्ड अ गॉर्जियस स्माइल, और उन्होंने एक गॉर्जियस स्माइल दी, एक खूबसूरत सी स्माइल दी. ही इज़ हार्मलेस, शी सेड दैट ही इज़ हार्मलेस, वो कोई भी हार्म नहीं करेगा. ही इज़ माई लिटिल पेट माई लवली क्रोकोडाइल, वो कहते हैं कि ही इज़ माई लवली पेट, वो क्या कहती हैं कि ही इज़ माई लिटिल पेट एंड लवली क्रोकोडाइल, वो मेरा प्यारा सा पेट है या पालतू जानवर है और वो मेरा प्यारा क्रोकी है. क्या नाम था उसका? क्रोकी. सो दिस इज़ अ ग्रेट ह्यूमरस पोएम, और यहाँ पे यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग of the dentist, that how he was feeling, and at that time the lady entered the clinic and he satisfied the doctor that croaky, means that pet animal or the dangerous wild animal, was not a harmful animal at that time because it was a pet animal. So this is all about the poem. Now moving towards the word meanings of this poem. Let's come and understand the word meanings of this poem. Okay, first word meaning on your screen. Queered means moved slowly, या आप कह सकते हैं shaken, right, या tremble भी कह सकते हैं. Quacked, quacked का meaning होता है shook because of fear, right, कांपना भी कह सकते हैं डर की वजह से. Muttered, muttered जैसे मैंने आपको बताया था धीरे से फुसफुसाना, इंग्लिश में से हम कहते हैं spoke quietly complaining about something. Okay, massive jaws, massive means very big, jaws is very clear कि jaws होता क्या है. Tweet, tweet means a silly person or a fool person, right. Wrung his hand means twisted his hands, अपने हाथों को इस तरीके से ट्विस्ट करना, राइट. Shrieked, shrieked means made a sudden loud noise because of frightened. क्या करना है? श्रिक्ड मीनिंग होता है कि डर के मारे अचानक से जब हमारी ज़ोर से आवाज़ निकल जाती है ना, उस सिचुएशन को या उस तरह के आवाज़ को हम क्या कहते हैं? श्रिक्ड कहते हैं. ये कभी कभी आपने फील किया होगा कि आप जब हॉरर मूवीज़ या हॉरर कुछ भी देखते हैं, एट दैट टाइम अगर अचानक से वो भूत का सीन आता है या ऐसा कुछ जो बहुत ही हॉरिबल होता है, उसमें अचानक से अपनी ऐसी आवाज़ निकल जाती है ना जिसमें हम डर जाते हैं, तो श्रिक्ड, उसे हम उस सिचुएशन में श्रिक्ड कहते हैं. ओके, गॉर्जियस स्माइल, वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट स्माइल, एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल को हमने क्या कहा है? gorgeous smile का. Now coming to the question answer section of this poem. So as in first question it has been asked कि you have to tell about the few words जिसमें कि कहा गया है कि fearful words क्या हैं. तो जैसे queered हुआ, shooked हुआ और shrieked हुआ, ये जितने words हमने अभी read किए हैं they all are fearful words. Okay, now coming to the next question, how is the dentist fear of the crocodile expressed? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि डेंटिस्ट जो है वो किस तरीके से डॉक्टर जो क्रोकोडाइल है उससे डर गया था. सो द डेंटिस्ट feared when the crocodile came inside and he stood away from him. He queered and quacked in fear. He checked him in weeping. यहाँ पे अगेन आपको मैं फिर से समझाऊंगी कि at the situation at that time when the crocodile entered the clinic and he sat on the chair, patient chair, at that time when doctor saw him, this was a frightful or fearful situation. Here the doctor was feeling so horrible. At that time he was not able to believe that a crocodile is sitting in front of him, right? And the situation was like that he was little bit queered, he was little bit shocked, and he don't want to meet this unpleasant situation. Then also he have to handle all these things. ये situation को उनको handle करना पड़ रहा था. So for that what he did, he kept a proper distance from that crocodile. उसने क्या किया कि उस crocodile से एक proper distance maintain की थी, and he started checking. He don't want to actually check him, but then also
he have to do that, he wants to shout loudly, he wants to cry, means doctor wants to shout loudly and doctor wants to cry, but there were no option for him because at that time crocodile was sitting in his front, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो क्रोकोडाइल था वो उनके सामने बैठा हुआ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स डज द डेंटिस्ट टेक टू एग्जामाइन द क्रोकोडाइल्स टीथ. सो कौन कौन से ऐसे स्टेप थे जो डेंटिस्ट ने लिए थे क्या करने के लिए, उस क्रोकोडाइल के टीथ को एग्जामाइन करने के लिए. तो फर्स्टली ही एग्जामाइन द टीथ फ्रॉम फार एंड देन ही क्लोज द लॉन्गेस्ट probe he had to search out of the decay. Then he wrung his hands and examined his teeth. So simple सी बात है, as I already explained you in this poem that first of all he make a proper distance from the crocodile. You can imagine that the crocodile is standing here and far from that crocodile the doctor was sitting in a big chair, right? Or he was standing far away from the crocodile, and he chose a biggest probe or biggest instrument he was having in his clinic to check the molar teeth or the backside teeth of that crocodile, because crocodile said कि I am having toothache or tooth decay beside my mouth or behind the teeth or the back side of my teeth, you can say. Okay, now moving forward, another question is, why did crocodile tell the dentist to do the back ones properly? तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि डेंटिस्ट को पीछे के दांतों को अच्छे से चेक करने के लिए क्रोकोडाइल ने क्यों कहा. बट ऑफ कोर्स जैसे कि आई टोल्ड यू दैट द क्रोकोडाइल वाज प्लेइंग ट्रिक्स विद डॉक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ इट ही वांट्स टू he asked actually doctor to check the last tooth of his jaw or the back side tooth of his jaw, we can say. So why was crocodile grinning? यहाँ पे क्रोकोडाइल ने ऐसी तीखी मुस्कान क्यों दी थी? Just because the crocodile knows that he is tricking with that doctor, and doctor was so frightened and feeling horrifying by seeing a crocodile in his clinic. वो डॉक्टर क्या हो गया था, बहुत डर गया था. ये चीज़ कौन जान रहा था? ये चीज़ जान रहा था क्रोकोडाइल, क्योंकि एक क्रोकोडाइल को कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो टूथ चेकअप के लिए आएगा किसी भी हॉस्पिटल में या किसी डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में. ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब क्रूकीज फिजिकल अपीयरेंस. ओके, इसमें अगर क्वेश्चन का मीनिंग देखें तो आपको उन फ्रेजेस को बताना है या उस फ्रेज़ को इस पोएम में जो यूज़ हुए बताना है जिसमें कि ये डिस्क्राइब होता है या इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि क्रूकी का फिज़िकल अपीयरेंस क्या था. तो अब अगर पोएम के उस फर्स्ट पार्ट को इमेजिन करें जहाँ पर उसने अपने मैसिव जॉज़ को ओपन करके क्या दिखाया था, किसको दिखाया था, डॉक्टर को दिखाया था, और उन मैसिव जॉज़ में कम से कम 300 शार्पन एंड पॉइंटेड टीथ थे. तो यहाँ पे इन दिस वे क्रूकी के फिज़िकल अपीयरेंस को बताया गया था कि उसके जॉज़ में जो 300 शार्पन एंड पॉइंटेड टीथ थे, इसलिए वो बहुत फियरफुल साइट था. Right? Okay. Last question, which line shows that the crocodile was playing a trick? तो यहाँ पे जब एक लेडी एंटर करती हैं, राइट, कहाँ पर, क्लिनिक में, वहाँ पे वो ज़ोर से चिल्लाती हैं. क्या चिल्लाती हैं? ओ क्रॉक, यू नोटी बॉय, यू आर प्लेइंग ट्रिक्स अगेन. तो ये जो लाइन है इस पोम की, वो क्या करती है, सिग्निफाई करती है या शो करती है कि यहाँ पे जो क्रोकोडाइल था वो डॉक्टर के साथ क्या कर रहा था, वो ट्रिक्स प्ले कर रहा था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेक्शन विद अ न्यू लेसन. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.